Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So this is our second lecture video in the topic of basic concepts of macroeconomics. Even in the subject of economics, this is my second lecture video for you all. In our previous video, we had already studied the meaning of macroeconomics and the difference between microeconomics and macroeconomics. If you have not watched that topic, so you can watch that video from my YouTube channel. Now today we will be discussing a very interesting topic, that is classification of goods. The goods are mainly classified into two categories. One, that is intermediate goods, and the another one which is known as final goods. गुड्स को हम दो कैटेगरीज में ले सकते हैं, that is intermediate goods and final goods. The goods which are ready for final use are known as final goods, and the goods on which the further production process is to be undertaken are known as intermediate goods. Now, the final goods can be further classified into two parts, that is capital goods and consumer goods. The final goods can be further classified into two, that is capital goods and consumer goods. What does capital goods means? Capital goods means the goods which are used in the further production process, and consumer goods are the goods which are used for final consumption. Now, और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जिन गुड्स को प्रोड्यूसर यूज़ करता है उन्हें हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, और जिन गुड्स को कंज्यूमर यूज़ करता है उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. फैक्ट्री में जो गुड्स यूज़ होती हैं उन्हें हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे, और अपने घर में जो गुड्स यूज़ होती हैं उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे. सो फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. Consumer goods can be further classified into two, that is durable goods and non-durable goods. बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं. ड्यूरेबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोटर बाइक्स, कार्स, मोबाइल phones, these goods come under durable goods because we make use of these goods for a long period of time. These goods will not get over after a single use, while non-durable goods includes vegetables, fruits, food articles and other things which gets over after its single use. जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं, वो गुड्स ख़त्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. और ड्यूरेबल गुड्स जिसे हम बहुत लंबे समय तक यूज़ कर पाते हैं. जो गुड्स आप स्टोर करके रख सकते हैं उन्हें ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. जो गुड्स आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. सो लेट अस मूव फर्दर. लेट अस टेक एन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स. एज आई टोल्ड यू, द गुड्स which are ready for final consumption are known as final goods, while the goods on which further production process is to be undertaken are known as intermediate goods. जो goods final use कर सकते हैं आप उसको हम final goods बोलते हैं, और जो goods को अभी और उस पर processing बाकी है उसको हम intermediate goods बोलते हैं. Let us take some explanation. Intermediate goods used for production of other goods and services. Intermediate goods से हम अदर गुड्स एंड सर्विसेज का और प्रोडक्शन करते हैं. उसमें आप मशीनरीज को ले सकते हैं, उसमें आप रॉ मटेरियल को ले सकते हैं. रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल से आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे. फॉर एग्जांपल मिल्क है तो मिल्क से आप पनीर बनाएंगे, मिल्क से आप बटर बनाएंगे. तो आपने क्या किया, फर्दर दूसरा प्रोडक्ट उससे बनाया. So intermediate goods used for production of other goods and services, while final goods used for final consumption. Final goods जो होती हैं उसको हम finally consume कर लेते हैं,
मिल्क है उसको हमने कंज्यूम कर लिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने मिल्क को इंटरमीडिएट गुड्स में भी एग्जांपल दे दिया और मिल्क को आपने फाइनल गुड्स में भी एग्जांपल दे दिया। सो द सेम प्रोडक्ट कैन बी इंटरमीडिएट गुड एंड द सेम प्रोडक्ट कैन बी फाइनल गुड, it only depends, its category or its nature depends upon its final use. मिल्क को अगर मैं एज अ हाउस होल्ड यूज़ करता हूँ, अपने घर पे लेके आया मैं 1 लीटर मिल्क और मेरी फैमिली ने उसे कंज्यूम किया, उसे हम बोलेंगे फाइनल गुड्स, बिकॉज उसको यूज़ किसने किया, कंज्यूमर ने यूज़ किया। लेकिन उसी मिल्क को एक डेयरी वाला लेके जाता है, डेयरी फार्मर, और वो उससे पनीर और बटर बनाता है रीसेल के लिए, तो अब हम उसी मिल्क को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उस मिल्क को यूज़ किसने किया, प्रोड्यूसर ने यूज़ किया। तो सेम प्रोडक्ट जब प्रोड्यूसर यूज़ करता है तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है, और सेम प्रोडक्ट जब कंज्यूमर यूज़ करता है तो वो फाइनल गुड बन जाता है। देखते हैं और क्या यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। इंटरमीडिएट गुड का सेकंड पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर मेंट फॉर रीसेल, सो वैल्यू गेट्स एडेड टू दीज गुड्स। ये रीसेल पर्पज़ के लिए होती हैं, उनको हम कंजम्पशन के लिए नहीं लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेडर है आपके सिटी में, शॉपकीपर है, वो कुछ गुड्स परचेज़ करके लेके आता है और उनको रीसेल करता है। आप अपने बुक्स जो स्टडीज़ करते हैं बुक्स से, वो बुक्स आप जिस स्टेशनरी वाले से परचेज़ करके लाते हैं, वो बुक्स उस स्टेशनरी वाले के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसने उसको कंजम्पशन के लिए परचेज़ नहीं किया, उसने उसको रीसेल के लिए पर्पज़ किया। लेकिन वही बुक्स आपके लिए क्या हो गई, आपके लिए फाइनल गुड्स है, बिकॉज आप उस गुड्स को, आप उन बुक्स को, अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स को रीसेल पर्पज़ करने से नहीं खरीदा आपने, आप उन बुक्स को क्या करेंगे, फाइनली यूज़ करेंगे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो अगेन एक एग्जांपल हो गया कि सेम प्रोडक्ट कैन बी द इंटरमीडिएट गुड, कैन बी द फाइनल गुड। अगर उसको रीसेल पर्पज़ से परचेज़ किया है तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, अगर उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए परचेज़ किया तो वो फाइनल गुड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं इंटरमीडिएट गुड में, इंटरमीडिएट गुड रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज़, यानी कि जिसमें अब फैक्ट्री की बाउंड्रीज़ में कह लीजिए या फिर रीसेलर की बाउंड्रीज़ में कह लीजिए, वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें अभी बाकी है, इट इज़ नॉट रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। वाइल फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, सो दीज फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट देखिए इंटरमीडिएट गुड्स का, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उस समय कौन से वैल्यू को हमें इंक्लूड करना है, कौन से वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, while the value of intermediate goods is not included in national income। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके माइंड में याद रहना चाहिए, while calculation of GDP और national income, which value is included, the value of final goods is included and the value of intermediate goods is not included। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, लाइक मिल्क का यूज़ अगर हम फैक्ट्री में करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ फर्दर मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए अगर उसको हलवाई यूज़ करता है मिल्क को, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। उसी मिल्क को हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो फाइनल गुड हो जाता है। सो द नेचर और कैटेगरी ऑफ गुड इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनल यूज़। लेट अस सी व्हाट इज़ फर्दर गिवन, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स। सो कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं आप इनको, और कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं। हमने दो अभी कैटेगरी पढ़ा, एक था इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा था फाइनल गुड्स। और फिर फाइनल गुड्स में दो हो जाती कैटेगरी, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फिर कंज्यूमर गुड्स की हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी पहले अभी, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल। एक्चुअली में वहाँ पे हमने दो पढ़ा था, लेकिन दो नहीं होता है, तीन कैटेगरी रहती है। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और तीसरा आ जाता है आपका सिंगल यूज़ और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, फर्स्ट वन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स are used for several years, do not get over after single use, after it is used once, it can be used for several years. Durable goods are of relatively high value, TV, fridge, AC, refrigerator,
मोबाइल फ़ोन्स, दीज गुड्स आर रिलेटिवली ऑफ हायर वैल्यू। अभी आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाएंगे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का आएगा। आप वेजिटेबल परचेज़ करने जाएंगे 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ की आएगी। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? मोबाइल फ़ोन की वैल्यू ज़्यादा हुई। सो द वैल्यू ऑफ durable goods is of a relatively higher value. After that, durable goods repeated use before being discarded. एक बार यूज़ करके वो ख़त्म नहीं होती है, आप उसको अगेन एंड अगेन बार बार यूज़ कर सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स को। एग्जाम्पल्स आर टीवी, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन्स एट्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो ये ड्यूरेबल गुड्स की जैसी ही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनका जो लाइफ स्पैन है वो कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें शूज़ की, तो शूज़ किस में आएंगे? ड्यूरेबल गुड्स में आएंगे, बिकॉज शूज़ को हम यूज़ करते हैं 1 साल तक शूज़ चलते हैं नॉर्मली, लॉन्गर पीरियड के लिए शूज़ चलते हैं। लेकिन उन शूज़ के लिए जो हमने पॉलिश लेके आए, तो पॉलिश किस में आएगी आपकी? वो पॉलिश आएगा सेमी ड्यूरेबल में, बिकॉज उसे आप एक बार लेके आए हैं और वो जैसे जैसे आप यूज़ करते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी होते हुए वो ख़त्म होती जा रही है। देखिए फर्दर सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या लिखा है? कैन बी यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, थोड़े समय के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, ज़्यादा लंबी, ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दीज कम्स अंडर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि जो ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ा कम समय के लिए होती है, 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम लेते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। फिर आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज़ सिंगल यूज़ गुड्स, विच गेट्स ओवर आफ्टर इट्स सिंगल यूज़। सो these non-durable goods are used up in a single act of consumption. एक 1 ग्लास ऑफ मिल्क है, आपने उसको पिया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो तो वो मिल्क किस में आएगा? नॉन ड्यूरेबल में। लेकिन जिस गिलास में आपने उस मिल्क को पिया वो आएगा सेमी ड्यूरेबल में, क्योंकि वो सपोज़ गिलास है, उसको आपने परचेज़ किया, क्रॉकरी का गिलास है, तो वो कुछ टाइम तक आप 1 साल 2 साल तक यूज़ करेंगे, फिर उसको चेंज कर देंगे, तो वो आएगा सेमी ड्यूरेबल में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है नॉन ड्यूरेबल के लिए? नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, वेजिटेबल आप परचेज करने जाएंगे 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ के आ जाएगा। एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर ब्रेड, डोमेस्टिक एलपीजी गैस, मिल्क, पेट्रोल एट्सेट्रा। तो ये आप यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है। ब्रेड आप परचेज़ करके लाए हैं, 2 साल तक यूज़ नहीं करेंगे, अभी परचेज़ करके लाए हैं, कंज्यूम करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्रिज अगर आप परचेज़ करके लाएँ तो वी विल मेक यूज़ ऑफ इट फॉर 7 to 10 ईयर्स। ओके। फिर एक आता है कंज्यूमर गुड्स में ही सर्विसेज। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं गुड्स की, सो गुड्स इंक्लूड्स द प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज बोथ, आर्टिकल्स एज वेल एज सर्विसेज बोथ। सो सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स which directly satisfy human wants. Examples of services are the services of doctors, teachers, lawyer, domestic servants, etc. So services are also under the goods, but these are non-material goods and which are directly satisfy the human wants. हम उसके डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन अचीव करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है यहाँ पे, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एट्सेट्रा। फर्दर हम चलते हैं कैपिटल गुड्स। हमने 2 तरह के गुड्स लिए थे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले लिया, 4 कैटेगरीज बना दिए, क्या था? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। अब कैपिटल गुड्स की हम बात करते हैं। कैपिटल गुड्स का मैंने क्या बताया था? द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। These are fixed assets of the producers. These are repeated use in production process for several years. And these goods are of high value. कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हैं, that these capital goods are used by whom? By the producer. These capital goods are also known as fixed assets. The capital goods are used for production of
फर्दर गुड्स, अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। द कैपिटल गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो हमें चार्ज करना ही करना है। अब आपके माइंड में हो सकता है एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स के लिए मैंने बोला कि प्रोड्यूसर यूज़ करता है और कैपिटल गुड्स के लिए भी मैंने बोला प्रोड्यूसर यूज़ करता है, तो क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल से मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने अभी कंज्यूमर गुड्स को दो कैटेगरी में बनाया, वन वॉज द ड्यूरेबल, अनदर वन वॉज नॉन ड्यूरेबल। जिसको एक बार यूज़ करते ख़त्म हो जाती है तो नॉन ड्यूरेबल, जिसको बार बार यूज़ करते रहते हैं तो वो ड्यूरेबल। इसी तरह से आप जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं उसको भी दो कैटेगरी कर दो, जो यूज़ करते ख़त्म हो जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और जो बार बार यूज़ कर सकते हैं तो वो कैपिटल गुड्स हो जाता है। एक प्रोड्यूसर होता है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीनरी भी यूज़ करता है और रॉ मटेरियल भी यूज़ करता है। जो प्रोड्यूसर ने मशीनरी यूज़ किया है वो मशीनरी आती है कैपिटल गुड्स में, और जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो रॉ मटेरियल आता है इंटरमीडिएट गुड्स में। मैंने आपको स्टेशनरी का एग्जांपल दिया था जिससे आप बुक्स परचेज़ करके लेके आते हैं। उस बुक सेलर ने, उस स्टेशनरी वाले ने अपनी शॉप पे जो फर्नीचर बनवा रखा है, जो अपनी दुकान पे काउंटर लगा रखा है, टेबल फर्नीचर चेयर रख रखा है, शेल्फ्स एंड शोकेसेस बना रखे हैं, वो आएगा कैपिटल गुड्स में, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, वो फिक्स है, एक बार उसने बना लिया और उसको डेली यूज़ कर रहा है। लेकिन जो बुक्स और स्टेशनरी मटेरियल वो सेल कर रहा है वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। तो दोनों कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर ही यूज़ करता है। लेकिन जो फिक्स एसेट के फॉर्म में होते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, और जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया है जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं उसमें मशीनरी भी आती है और रॉ मटेरियल भी आता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स के तो दो कैटेगरी हो गए, प्रोड्यूसर गुड्स में मशीनरी भी है और रॉ मटेरियल भी है। मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड्स है, और रॉ मटेरियल क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं क्या वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं? ऑब्वियसली यस, क्योंकि कैपिटल गुड्स का यूज़ कौन करता है, कैपिटल गुड्स का यूज़ प्रोड्यूसर ही करता है। अगर उसी कैपिटल मशीनरी का यूज़ कंज्यूमर करने लगेगा तो फिर वो कंज्यूमर गुड में चला जाएगा, लेकिन कंज्यूमर मशीनरी का क्या करेगा, कोई यूज़ नहीं है मशीनरी का कंज्यूमर के लिए। तो मशीनरी का यूज़ कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है वो प्रोड्यूसर गुड्स हुए। लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्या वो कैपिटल गुड्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में तो कैपिटल गुड्स भी आते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी आते हैं। तो सारे के सारे जो प्रोड्यूसर गुड है वो बड़ी कैटेगरी हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में दो आइटम हो गई। पहला है आपके पास में कैपिटल गुड्स और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड में दो कैटेगरीज हैं। तो प्रोड्यूसर गुड इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। प्रोड्यूसर गुड में कैपिटल गुड्स भी हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं। ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स बिकॉज उसमें इंटरमीडिएट गुड भी हैं, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड ऑब्वियसली कैन बी कॉल्ड एज द all the capital goods can be called as the producer good, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड का ही कैटेगरी है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो रॉ मटेरियल किस में आता है, इंटरमीडिएट गुड में, और फिक्स्ड एसेट किस में आता है, कैपिटल गुड में। ये दोनों के दोनों प्रोड्यूसर गुड्स के पार्ट हैं। रॉ मटेरियल इज अ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड। Fixed assets can be repeatedly used. Thus, all capital goods that is fixed assets are producer goods, but all producer goods जिसमें दो चीज़ें हैं कैन नॉट बी कैपिटल गुड्स। तो जितने भी आपके कैपिटल गुड्स हैं वो तो प्रोड्यूसर में ही आएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर में तो कैपिटल गुड भी हैं और इंटरमीडिएट गुड भी है। तो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड को आप कैपिटल गुड नहीं बोल सकते, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड कैपिटल गुड इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी बचा है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो का बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैं नॉर्मली अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो पोस्ट करता हूँ। ये मेरा इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो है। आपको रियल में अगर इस वीडियो का बेनिफिट मिल रहा है तो ये बात भी कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, hit the notification button so that you will be getting all the
notifications latestly as soon as I post the video. And this chapter will be splitted into 10 parts. ये second video है, further 8 parts में आपको और इसके बना के और पूरा chapter पूरा डिटेल में आपको अच्छे से explain करूँगा. That's all for today. We'll meet soon. Thank you.